Good morning students, this is part 4 biomolecules class 12 chemistry, and in this video I'm going to discuss the structures of protein. So first of all, the primary structure of protein. Proteins may have one or more polypeptide chains, and each polypeptide in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence, and in this sequence of amino acid that is said to be primary structure of that protein. And each in this primary structure, the sequence of the amino acid creates a different protein. सो जो हमारी सिंपल चेन जो रन करती है प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड, देखो प्रोटीन हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन से भी बन सकते हैं और एक से ज़्यादा से भी बन सकता है, और हर पॉलीपेप्टाइड में जो अमीनो एसिड्स है वो एक दूसरे से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिंक्ड है, और अगर वही सीक्वेंस मेंटेन रहता है अमीनो एसिड में, इफ दैट सीक्वेंस इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो दैट इज सेड टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन. सो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो दैट सीक्वेंस में, तो इट क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन. नेक्स्ट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन. व्हाट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर? The secondary structure protein refers to the shape in which a long peptide chain can exist. Fine. तो सेकेंडरी में आपकी जो लॉन्ग पेप्टाइड चेन जो रन कर रही है सीक्वेंस में, उसकी शेप में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है. दे आर फाइंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. One is the alpha helix and the other is the beta pleated sheet structure. These structures arise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between CONH groups of the peptide bond. So alpha helix beta pleated sheet structures क्यों बनती हैं? Because जैसे ही आपकी polypeptide chain रन कर रही है बिल्कुल सीधी straight chain as a running, so उसकी बैकबोन फोल्ड कर जाती है, मीन्स आपकी चेन बीच में से फोल्ड कर जाती है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है हमारी CONH ग्रुप में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोनिल एंड द NH group. So your basically backbone of the peptide chain, it folds, fine, and it folds and creates different structures. So alpha helix is one of the most common way in which the polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting into right-handed screw with the NH of each amino acid residue hydrogen bonding to CO of an adjacent turn of the helix as shown in figure 14.1. तो आप देख सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है आपका, एंड इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में आप देखें तो इस तरीके से आपकी एक ही चेन है जो रन कर रही है, और कार्बोनिल जो है NH के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इट इज़ जस्ट लाइक एन स्क्रू और द हेलिक्स, राइट हैंडेड स्क्रू की तरह इसने स्ट्रक्चर बना दिया या हेलिक्स बना दिया. एंड द थिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ ओनली द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द CO and the NH. So you can see this is the helix like structure because of the presence of hydrogen bonding between CO and the NH bond. Otherwise it was straight, but because of the hydrogen bonding between CO and H, it gets fold, right, and forming the alpha helix structure of protein. Now next is the beta. In beta structure, all peptide chains are stretched out nearly maximum extension and then laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonds. The structure resembles the pleated folds of drapery and therefore is known as the beta pleated sheet. So आपकी we have considered 3 peptide chains here, and these peptide chains are stretched out to nearly maximum extension. These chains are stretched side by side. They are held together by intermolecular hydrogen bonds. So because of the hydrogen bonding, they are stretched up to the maximum extension, and the structure resembles the pleated folds of drapery, and therefore is known as the beta pleated sheet. So it is like beta pleated sheets, fine. And अगर पेज को इस तरीके से फोल्ड करें तो beta pleated structure you can make. Now next is the tertiary structure of proteins. अब tertiary structure बेटा ये जो beta plated है ये आप वैसे पेज से भी आप लोग कर सकते हैं. अगर आप पेज को फोल्ड करें, ये मैं आपको शो करके दिखा दूँगी एक बार आपकी क्लास में. अगर आप पेज को एक तरीके से फोल्ड करें तो आपको ऐसे प्लेटेड शीट्स मिल जाएंगी या प्लेटेड फोल्ड्स मिल जाएंगे, फाइन. सो इट इज़ जस्ट लाइक द बीटा प्लेटेड शीट. तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से भी एडजस्ट करता है, बट दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट बिटवीन 2 or 3 basically peptide chains. It requires 2 or 3 peptide chains. In the alpha helix it requires only 1 peptide, fine. The next is the tertiary structure of protein. The tertiary structure of protein represents overall folding of the polypeptide chain, that is further folding of the secondary structure. अब tertiary कैसे बनता है? Further secondary में भी और foldings आ जाए तो आपका tertiary बन जाएगा, and it gives rise to 2 major molecular shapes, fibers and the globular. So tertiary structure से ही आपका fibers और globular shape आपकी बनती है. तो फाइबर्स में हमने क्या पढ़ा था कि आपकी शीट्स जो है पेप्टाइड पैरेलल रन करती हैं, एंड दे आर बेसिकली हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स दैट फॉर्म्स द फाइब्रस प्रोटीन. एंड ग्लोबुलर में क्या होता है, वो इन एक स्क्वायर बना देती है या सर्कुलर हो जाता है उनका शेप, तो ग्लोबुलर प्रोटीन. So the main forces which stabilize the secondary or the tertiary structure proteins are the hydrogen bonds, disulfide linkage, van der Waals and the electrostatic force of interaction. So secondary और tertiary structure ऐसे कौन से force हैं जो secondary और tertiary structure को basically stabilize कर रहे हैं proteins के? hydrogen bonding, disulfide linkages, van der Waals and the electrostatic force of interaction. Now next is the quaternary. Now some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunits.
अब कुछ प्रोटीन्स जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हैं, एंड दैट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो इन सब यूनिट्स का आपस में एक स्पेस में अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ जैसा भी अरेंजमेंट होगा वही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देगा। फाइन, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दिस 4 स्ट्रक्चर्स इज गिवन इन दिस फिगर वेयर वी कलर्ड बॉल रिप्रेजेंटेड अमीनो एसिड्स। सो यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, and this is the primary, this is the secondary alpha helix, one peptide chain is there, and this is the one peptide chain that is making the beta plated sheets, and next is the quaternary. In the quaternary you can see 2 or more subunits are there, and they have coiled with each other due to the force of interaction, the hydrogen bonding, van der Waals forces, so many things are there which are making that quaternary structure possible. Right, 2 subunits, यहाँ पे 2 subunits दिखाए गए आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये आपका अल्फा हेलिक्स है, दिस इज़ योर बेसिकली दिस इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस इज़ दी अब कॉयल आ गया इसमें, ये अंदर की तरफ मुड़ गई आपकी पेप्टाइड चेन, तो दिस इज़ द टर्शियरी स्ट्रक्चर, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो ऐसा ही टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर 2-3 इकट्ठे हो जाएँ तो आपका क्वाटरनरी दे देंगे। मीन्स आपकी एक पेप्टाइड चेन ने टर्शियरी स्ट्रक्चर बना दिया, और वही टर्शियरी स्ट्रक्चर 2-3 अमीनो एसिड्स के इकट्ठे लगा दे, दैट विल गिव यू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना। Now next is the denaturation of proteins. Now protein also get denatured. So protein found in biological system with a unique 3D structure and biological activity is called a native protein. फाइन, तो प्रोटीन जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलता है एक यूनिक 3D स्ट्रक्चर के साथ एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ, जिसको हम बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इट्स सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन pH, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब। तो कोई भी नेटिव प्रोटीन जैसा भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसमें हम थोड़ा सा चेंज ला दें, उसकी फिजिकल चेंज ला दें, लाइक टेम्परेचर चेंज कर दें, या केमिकल चेंज, या उसमें pH का चेंज ला दें, या हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसके डिस्टर्ब कर दें, तो ये सब डिस्टर्ब होने की वजह से जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसके जो फोल्डिंग्स होती हैं उन पेप्टाइड चेन्स के बीच में वो अनफोल्ड हो जाती हैं, या हेलिक्स जो है वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं। तो प्रोटीन, ये सब होने की वजह से प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज़ कर देता है। फाइन, एंड दिस इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी structures are destroyed but primary structure remains intact and the coagulation of egg white on boiling is a common example of denaturation। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि जब भी डीनेचुरेशन होगी, प्राइमरी तो प्राइमरी ही रहेगा, बट टर्शियरी सेकेंडरी आपके प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देंगे। यू कैन से जब एग आपका रहता है सिंपल, तो उसमें जो यॉक रहता है वो येलो कलर का लिक्विड रहता है, लेकिन बॉयल करने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ऐसा क्या हो गया, बिकॉज वहाँ पे जैसे ही आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, बायोलॉजिकली नेटिव प्रोटीन उसका टर्शियरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा था, वंस यू हैव बॉइल्ड दिया है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज होकर प्राइमरी में चला गया, तो प्राइमरी में होते ही उसका डीनेचुरेशन हो गया, उसने अपना उसका बेसिकली सॉलिडिफाई हो गया वो, ठीक है ना, तो वहाँ चेंज हो गया। दैट इज़ द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट इज अगेन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड्स। सो व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड्स? Every generation of each and every species resembles its ancestors in many ways, and how are these characteristics transmitted from one generation to the next? It has, देखो, हर एक स्पीशीज़ जो है अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों से मैच कर रही है। तो कैसे मैच करती हैं, कैसे शक्लें मैच कर रही हैं, कैसे उसके नैन नक्श मैच कर रहे हैं, कैसे हाव भाव मैच कर रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसमिट हुई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो ये सब बेसिकली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियस ऑफ ए लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स। सो हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, वो हमारे इनहेरेंट कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कर रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। एंड द पार्टिकुलर न्यूक्लियस ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी आर कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। सो जिस पार्टिकल की वजह से हेरिडिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हेरिडिटी और द ट्रांसमिशन इज बेसिकली नोन एज द क्रोमोसोम्स। And again, these chromosomes are made up of proteins and other type of biomolecules called the nucleic acid, and they are made up of proteins and the nucleic acids. And these are mainly of two types, the DNA and the RNA. This DNA is the deoxyribonucleic acid and RNA is the ribonucleic acid. And since nucleic acids are long chain polymers of nucleotides, so they are also called the polynucleotides. So nucleic acids भी आपके long chain polymers हैं। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड्स के लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैं, इसलिए हम इनको न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। जैसे हम प्रोटीन्स को पॉलीमाइड्स या पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, ऐसे ही हम न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। नाउ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। सो this is the chemical composition of nucleic acid, in which in this topic you will study the how the nucleic acid basically how it is formed. It is formed by base, a pentose sugar, a phosphoric acid and the heterocyclic compound, that is a base जिसमें nitrogen present है।
आपका, जिसे हम बेसिस बोलते हैं, और बेसिस भी 2 तरीके के हैं आपके, ठीक है ना। तो इस बेसिकली डीएनए में, इस न्यूक्लिक एसिड में आप यही चीज़ पढ़ेंगे। सो ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ बायोमोलिक्यूल, दैट इज इट इन दिस वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, लाइक बेसिकली द सेकेंडरी और द टर्शियरी और द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन।